students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter. Log on to MS Access 2016. In this chapter, you will learn about data, database and DBMS. Types of database, advantages of DBMS, structure of database, MS Access interface and architecture, creating a database, creating a new table and primary key, data types, field in a table, saving a table, editing data in a table, sorting data within a table, filtering records and close our database. Data, database and DBMS. Data is a collection of facts related to any object. For example, name, age, etc. It has to be relevant, specific and timely. When it is processed, organized, structured or presented to make it useful, it is called information. For example, a telephone directory. Database is a collection of data in an organized way. It supports its storage and manipulation of data. Database management system refers to the resources of handling all the records in a database. It gives us an organized methodology for creating, retrieving, updating and managing data for users and programmers. Database Management System or DBMS is a technology of storing and retrieving user data with productivity and security. See, आपको पता है डेटा जो है फैक्ट्स का कलेक्शन होता है जो एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं. ओके जैसे कि नेम या है या एज है, ये रेलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए. तो जब आपका प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइज होता है या स्ट्रक्चर्ड होता है, ओके या प्रेजेंट किया जाता है टू मेक इट यूजफुल, देन इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, राइट. जैसे कि आपका एक टेलीफोन डायरेक्टरी. तो डेटाबेस आपका कलेक्शन है डेटा का, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में. ओके ये सपोर्ट करता है इसका स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रेफर करता है टू द रिसोर्सेज ऑफ हैंडलिंग जो रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस. ओके एक ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी हमें ये देता है क्रिएट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटा को फॉर यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स. सो आपकी जो DBMS है ये आपकी टेक्नोलॉजी है of storing and retrieving user data with productivity and security. Okay. Next, types of data. इसको पढ़ने से पहले हम learn more जानते हैं. Okay. Data is raw facts that are not organized. When we organize data and present it in proper format, it becomes information. We take decisions with the help of information. देखिए आपके data raw facts होते हैं जो organized नहीं होते हैं, तो जब आप इसे ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन बन जाता है. ओके एंड देन इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम डिसीजन लेते हैं. ओके टाइप्स ऑफ डेटाबेस. 4 बेसिक टाइप ऑफ डेटाबेसेस आर एज फॉलोज. हायरार्किकल डेटाबेसेस, B network databases, C relational databases and D object oriented databases. सबसे पहले बात करते हैं हायरार्किकल डेटाबेसेस की. हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल इज वेरी फास्ट एंड सिंपल. In this database, records are organized in groups that are stacked in trees. The parent-child relationship exists among various levels. It can be accessed and updated rapidly because in this model, the structures like a tree and the relationship between records are defined in advance. This is a two-edged feature. Here, adding a new field or record requires entire database to be redefined. देखिए ये जो डेटाबेस है आपका डेटाबेस मॉडल है काफ़ी फास्ट एंड सिंपल है और इसमें रिकॉर्ड जो आपके ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि स्टैक्ड होते हैं इन ट्रीज. तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करता है अमंग वेरियस लेवल्स, तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं रैपिडली क्योंकि इस मॉडल में क्या होता है स्ट्रक्चर इज लाइक अ ट्री. ओके और जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिकॉर्ड का वो डिफाइंड होती है एडवांस में. तो ये आपका 2-edged फीचर है. Network databases. Network databases are mainly used on large digital computers. It is interconnected network of records. It authorized the modeling of many-to-many relationships in data. अब देखिए जो नेटवर्क डेटाबेसेस है वो मेनली आपकी लार्ज डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं और ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है रिकॉर्ड्स का. Relational databases. Data in a relational database is stored in different tables. Each table contains a key field that mainly identifies each row called primary key. In this database, tables are called relations. Tuple means a row or record and columns are called attribute or fields.
Database entries can be modified easily by modifying table structure. Okay, अगर आप इस database की बात करें तो आपका जो डेटा होता है ना इस database में वो आपके डिफरेंट टेबल्स में स्टोर्ड होता है. हर टेबल में आपका की फील्ड होता है जो मेनली आइडेंटिफाई करता है हर रो को, जिसे कहते हैं प्राइमरी की. तो टेबल्स आपके इस डेटाबेस में रिलेशंस होते हैं. ट्यूपल का मतलब है कि एक रो या रिकॉर्ड, एंड कॉलम का मतलब है एट्रीब्यूट और फील्ड्स. ओके, तो डेटाबेस एंट्रीज को मॉडिफाई किया जा सकता है इजीली जैसे ही हमने टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया तो. ओके, next is object oriented model. The functionality of the object oriented programming prevails in this model. It provides full featured database programming capability. Applications require less code, use more natural data, modeling and code bases are easier to maintain. Object developers can write complex database applications with little effort. Object-oriented databases use small, recyclable software called objects. The objects themselves are stored in object-oriented database. Each object contains two elements: piece of data, example, sound, video, text, or graphics; instructions or software programs called methods for what to do with the data. Okay. फंक्शनैलिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की वो प्रिवेल करती है इस मॉडल में, और ये फुल फीचर डेटाबेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है. एप्लीकेशन को लेस कोड की ज़रूरत होती है, नेचुरल डेटा मॉडलिंग यूज़ किया जाता है ज़्यादा, एंड कोड जो बेसिस है आपकी वो उनको मेंटेन करना काफ़ी आसान है. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट डेवलपर्स हैं वो कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं विद लेस एफर्ट. ओके, विद लिटिल एफर्ट. ये आपके डेटाबेसेस जो हैं स्मॉल और रिसाइक्लेबल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट्स. तो हर ऑब्जेक्ट में आपके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होता है पीस ऑफ डेटा एंड एक होता है इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉल्ड मेथड्स. ओके, एडवांटेजेस ऑफ DBMS. The database management system has following advantages. Number 1, redundancy can be controlled. There is some common data of the students which has to be mentioned in each application, like roll number, name, class, phone number, address, etc. And it will create the problem of redundancy. Using DBMS, data is organized at one place and other relations can use the data by sharing it. Thus, a centralized system of DBMS reduces the redundancy of data. ओके, देखिए कुछ कॉमन डेटा होता है स्टूडेंट्स का जो कि मेंशन करना होता है हर एप्लीकेशन में, लाइक उसका रोल नंबर है, क्लास है, और आपका नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस. ओके, तो ये क्या करता है, रेडंडेंसी की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है. तो DBMS का जब यूज़ करते हैं हम तो डेटा जो है एक जगह पे आपका ऑर्गेनाइज होता है और जो अदर रिलेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं डेटा को बाय शेयरिंग इट. तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो है DBMS का वो जो ये रिडंडेंसी होती है डेटा को उसको रिड्यूस कर देता है. Okay. Number 2, integrity can be enforced. By integrity, we mean that the data of the database is always correct and accurate. To maintain the integrity of data, some integrity constraints are enforced on the database. DBMS provides capabilities for defining and enforcing the constraints. Integrity का मतलब क्या है कि जो डेटा है डेटाबेस का वो हमेशा आपका करेक्ट है एंड एक्यूरेट है. तो इस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आपके एनफोर्स किए जाते हैं डेटाबेस में. ओके, नंबर 3, इनकंसिस्टेंसी शुड बी अवॉइडेड. व्हेन द सेम डेटा इज डुप्लीकेटेड एंड चेंजेस आर मेड एट one place which is not circulated to other places, it gives rise to inconsistency and data is said to be inconsistent. Redundancy of data greatly affects its consistency. If redundancy is less, it is easy to implement the consistency of data. देखिए, जब सेम डेटा आपका डुप्लीकेट होता है तो चेंजेस आपके एक जगह पे होते हैं जो आपके दूसरी जगह पे सर्कुलेट नहीं होते, तो इससे इनकंसिस्टेंसी हो जाती है. ओके, तो रिडंडेंसी डेटा की उसको हम ये जो है ग्रेटली अफेक्ट करते हैं वो कंसिस्टेंसी को. अगर रिडंडेंसी कम होगी तो आसान रहेगा इम्प्लीमेंट करना द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. ओके, नंबर 4, डेटा कैन बी शेयर्ड. Data can be shared by multiple applications in centralized DBMS as compared to file system. This application may be developed without having to create any new stored files. Okay. अब इसका एक सबसे बड़ा advantage ये है कि data को हम share कर सकते हैं. Okay, by multiple applications अगर centralized DBMS है. Okay, which is not possible in file system. 5, standards can be enforced. DBMS is a central system and so standards can be enforced with ease at various levels. Interchange of data is
feasible due to the standardization of data. ये आपका सेंट्रल सिस्टम है, सो स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स किया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ अलग अलग लेवल्स पे आपके. ओके, इंटरचेंज जो है डाटा का वो फिजिबल है बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, राइट. नंबर 6, restricting unauthorized access. When multiple users share a database, all users will not be authorized to access all information in the database. Data is considered confidential and only authorized persons are allowed to access data. Some users may be permitted only to retrieve data, whereas others are allowed to both retrieve and update. A DBMS should provide a security and authorization system to enforce restrictions. देखिए, जब मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को शेयर करते हैं तो जो यूजर्स है ना वो ऑथोराइज ही होंगे कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें डेटाबेस में. तो डेटा को कॉन्फिडेंशियल माना जाता है ना, और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही अलाउड होते हैं कि वो डेटा को एक्सेस कर सकें. कुछ यूजर्स, हालांकि कुछ यूजर्स को परमिशन होती है कि वो डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, जबकि दूसरे जो है उनको अलाउंस होती है, उनको अलाउड होता है कि वो रिट्रीव भी कर सके और अपडेट भी कर सके. ओके. नंबर 7, providing backup and recovery. A DBMS must provide facility for recovery from hardware or software failures. The backup and recovery subsystem of the DBMS is responsible for recovery. तो DBMS को ये फैसिलिटी हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए रिकवरी के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर से. जो बैकअप एंड रिकवरी सबसिस्टम है DBMS का वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिकवरी के लिए, राइट. नंबर 8, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम इज लोअर. When data is standardized in a database, it becomes easy to respond to any request. The cost of developing and maintaining an application is low. The productivity of programmers can be higher in using non-procedural languages that have been developed with DBMS than using procedural languages. देखिए, जब आपका डेटा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, आपका होता है डेटाबेस में, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है कि किसी भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना. कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन एप्लीकेशन काफ़ी लो होता है, तो जो प्रोडक्टिविटी है प्रोग्रामर की वो हायर हो सकती है इन यूजिंग नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस. ओके. नंबर 9, concurrency control. DBMS has mechanism to provide concurrent access of data to multiple users. Okay. अब देखिए DBMS का mechanism है जो कि concurrent access of data देता to multiple users. Okay. Next, structure of database. A specific structure is used to store the data in a database. It is usually maintained in the form of tables. A table consists of fields, records, and data. You can create tables, queries, forms, and reports. Let us discuss about them in brief. Number 1, table. Table is a collection of data in the form of rows and columns. Rows contain the record of a particular entity. Each table contains finite number of rows and columns. देखिए, टेबल आपका कलेक्शन होता है डेटा का, ये किसकी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है. रो में आपके रिकॉर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर एंटिटी के, और हर टेबल में आपके फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं. ओके. टेबल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. अब देखते हैं टेबल के क्या एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले है फील्ड. द कॉलम हेडिंग कंटेन्स अ फील्ड व्हिच इज अ यूनिक कैटेगरी. इट्स एग्जांपल्स आर ID, स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट नेम, date of birth, that is DOB, and house are fields. Column headings in the table shown above. B, record. A record represents the rows of a table. C, data. Data is the data organized in fields and records. अच्छा देखिए, आपको जैसे ये टेबल नज़र आ रही है, राइट. तो इसमें टेबल के आपके एलिमेंट्स में सबसे पहले आपका फील्ड, जो कॉलम हेडिंग होता है उसमें आपका फील्ड होता है जो कि यूनिक कैटेगरी होती है. जैसे कि एग्जांपल है ID है, स्टूडेंट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है या डेट ऑफ बर्थ है. ओके. रिकॉर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है रोज ऑफ अ टेबल, एंड जो डेटा है वो डेटा आपका क्या है, डेटा जो आपके फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स में ऑर्गेनाइज्ड है, राइट. नेक्स्ट, क्वेरीज. Queries are specified conditions that select particular data from a database and display it. Once the condition is met, a table is displayed with required entries in it. Queries आपकी specified conditions होती है जो किसी particular data को select करती हैं database में और उसको display करती हैं. Okay? एक बार condition आपकी fulfill होगी तो table display हो जाती है with required entries. Okay? Next, for example, if you want to retrieve the record of those students whose house is Lily, you will get the record of ID 2 and 7 in the form of table. अगर आपको उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है जिनका हाउस है लिली, तो आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्ड ऑफ ID 2 and 7 in the form of a table.
Forms. Form is just like the form you fill up for admission or any other form. It provides a user interface for database access. The user can enter the data in the form that will be stored in the corresponding data. अब फॉर्म जैसे आपका एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, कोई भी फॉर्म होता है जैसे आप फिलअप करते हैं, ओके तो यूज़र क्या करता है, डेटा एंटर करता है फॉर्म में, जो कि फिर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटाबेस में आपके स्टोर हो जाती है. नेक्स्ट, रिपोर्ट्स. दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा of a database in an organized format. It collects the data from the database and presents it in an organized manner. Okay. अब जो आपकी रिपोर्ट्स हैं इनको यूज किया जाता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किसी डेटाबेस के एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में. ये डेटा को कलेक्ट करता है डेटाबेस से और फिर प्रेजेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, राइट. MS Access. Microsoft Access is a database management system from Microsoft that combines the relational Microsoft Z database engine with a graphical user interface and software development tools. It stores data in its own format based on the Access Z database engine. It also allows you to link related information easily. It can also import or link directly to data stored in other applications and databases. Okay. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका DBMS है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट जो कंबाइन करता है रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट शेप डेटाबेस इंजन को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ यानी GUI के साथ एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ. अब ये जो है डेटा को स्टोर करता है अपने खुद के फॉर्मेट में जो बेस्ड होता है एक्सेस जेड डेटाबेस इंजन में, ओके. इसके अलावा ये आपको अलाउ करता है कि आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ईजिली लिंक कर सकें. ये इम्पोर्ट भी करता है या लिंक करता है डायरेक्टली लिंक करता है डायरेक्टली टू डेटा स्टोर जो आपके दूसरे एप्लीकेशंस या डेटाबेसेस में होते हैं, ओके. एक्सेस कैन वर्क directly with data from different sources. It can also understand and use a wide variety of other data formats, including many other database file structures. You can import and import data from word processing files, spreadsheets, or database files directly. It can work with most popular databases. Programmers can use it to develop application software. The database will store the information collected through the execution of application software. It provides a graphical user interface that allows you to manage and organize the data in the form of tables. You can create queries, forms and reports in MS Access. अच्छा देखिए, Access आपका जो है वो डायरेक्टली वर्क करता है डेटा के साथ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये समझता भी है एंड यूज़ करता है वाइड वेराइटी ऑफ जो आपके अदर डेटा फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आपके इंक्लूडिंग मेनी अदर डेटाबेस फाइल स्ट्रक्चर्स. आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग फाइल से, स्प्रेडशीट से या फिर डेटाबेस फाइल से डायरेक्टली, ओके. ये बहुत जो पॉपुलर डेटाबेसेस है उनके साथ वर्क करता है. प्रोग्रामर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. डेटाबेस जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके. तो अब क्योंकि ये GUI प्रोवाइड करता है, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आपको अलाउ करता है कि आप मैनेज कर सकें डेटा को, ऑर्गेनाइज कर सकें टेबल्स की फॉर्म में, ओके. आप क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं MS Access में, ओके. MS Access इंटरफेस एंड आर्किटेक्चर, ओके. तो देखिए कुछ इस तरह से देखिए MS Access है आपका. दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार एंड दिस इज द नेविगेशन पेन. टाइटल बार आपका टॉप पे, देन देयर रिबन एंड दिस इज द वर्किंग एरिया एंड लास्ट में आपके है ये नेविगेशन बटन, ओके. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar contains the most commonly used commands like save, undo, redo, etc. It is present in the top left corner of the window. Okay. Quick Access Toolbar के बारे में I'm sure आप सबको पता ही होगा. इसमें वो commands होती है जिनको हम frequently और बहुत ज़्यादा use करते हैं, like undo, redo, save. Okay. Title bar. It is the topmost bar on the screen. It shows the name of the document. It also contains 3 buttons: minimize, maximize and close. ये भी आपको पता है कि टॉप मोस्ट बार होता है स्क्रीन में, उसमें 3 buttons होते हैं. Ribbon. Ribbon consists of various tabs and corresponding commands and buttons displayed below the tabs. इसमें आपके बहुत सारे tabs होते हैं, corresponding commands and buttons होते हैं जो डिस्प्ले होते हैं below the tabs. Working area. Working area is the area in which you create table. Working area आपका वो एरिया है जहाँ पे आप टेबल को क्रिएट करते हैं. Navigation button. Navigation button is present at the bottom of the work area. It contains the buttons with
whose help you can move from one record to another, move forward or backward, move to first record or last record. And navigation pane shows the objects in the database like tables, queries, forms and reports. देखिए नेविगेशन बटन आपके वर्क एरिया के बॉटम में होता है. इसमें आपके बटन्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप एक रिकॉर्ड को दूसरे में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड को मूव कर सकते हैं. एंड जो नेविगेशन पेन है ये ऑब्जेक्ट्स को शो करते हैं द डेटाबेस लाइक आपका टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. ओके. फैक्ट फाइल. You can hide the ribbon by double clicking on any tab. To unhide the ribbon again, double click on the tab. अगर आप किसी भी रिबन को हाइड करना चाहते हैं जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए किसी भी टैब पे, और अनहाइड करने के लिए फिर से आपको टैब पे डबल क्लिक करना पड़ेगा. नेक्स्ट फैक्ट फाइल. यू कैन कस्टमाइज योर ओन क्विक एक्सेस टूल बार. आप अपना क्विक एक्सेस टूल बार अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट आर्किटेक्चर. Access calls anything that can have a name and object. Within an Access desktop database, the main objects are tables, queries, forms, reports, macros, data macros, and modules. It also includes all the major objects related to the stored data, including objects you define to automate the use of your data. An Access desktop database is a fully functional RDBMS. It provides features like data manipulation, data definition, and data control. These features help us manage large data volumes. Okay, access call anything, okay, जिसमें that can have a जिसमें name हो और object हो. Okay, तो within an Access desktop database जो main objects हैं आपके table, queries, formats, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज, डेटा मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स होते हैं. इसके अलावा इसमें और भी आपके मेजर ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो होते हैं ना आपके टू द स्टोर डेटा, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स जिसे आप डिफाइन करते हैं टू ऑटोमेट द यूज ऑफ योर डेटा. तो आपका जो एक्सेस डेस्कटॉप डेटाबेस है वो फुल्ली फंक्शनल RDBMS है. R स्टैंड्स फॉर रिलेशनल, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं लाइक डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन और डेटा कंट्रोल. तो ये जो फीचर है ना ये लार्ज डेटा वॉल्यूम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं. डेटा डेफिनेशन. An RDBMS allows you to define the kind of data you have and how it should be stored. You can define rules that the RDBMS can use to ensure the integrity of the data. देखिए RDBMS आपको अलाउ करता है कि आप डिफाइन कर सके काइंड ऑफ डेटा जो आपके पास है और इसको किस तरह से स्टोर करना चाहिए. आप रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं जो RDBMS यूज़ करता है जिससे कि वो डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है. ओके. नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन. An RDBMS provides you many ways to work with your data. For example, you can search a single table for information or request a complex search across several related data tables. You can update a single field or many records with a single command. You can write programs that use RDBMS commands to get data that you want to display and allow the user to update the data. Access uses a powerful SQL database language to process data in your टेबल्स. ओके, अब ये देखिए RDBMS जो आपको बहुत सारे तरीके प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी डेटा के साथ काम कर सकते हैं. ओके, जैसे कि अगर आपको एक सिंगल टेबल को सर्च करना है इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके, या फिर आपने रिक्वेस्ट करनी कॉम्प्लेक्स सर्च को अक्रॉस सेवरल रिलेटेड टेबल्स, आप सिंगल फील्ड को अपडेट कर सकते हैं. आप बहुत सारे रिकॉर्ड को एक सिंगल कमांड के साथ आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जो RDBMS कमांड्स को यूज़ करते हैं जिससे आप डेटा ले सकते हैं, ओके, जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं एंड यूज़र को अलाउ करें कि आप डेटा को अपडेट कर सकें. Okay. Data control. In the case of RDBMS, many users can read and update data. An RDBMS that is designed to allow data sharing also provides features to ensure that no two people can change the same data simultaneously. The systems allow you to group changes known as transactions so that either all the changes or none of the changes seem in your data. You might also want to be sure that no one else can view your data. Since you can share your Access data with other users, you need to set restrictions on users who are allowed to see your update. देखिए RDBMS के केस में क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं डेटा को रीड कर सकते हैं, उससे अपडेट कर सकते हैं. ओके, तो RDBMS जो इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो डेटा शेयरिंग को अलाउ करे. ओके, आपको ये फीचर भी प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है कि जो no two people can change the data simultaneously, right? तो सिस्टम जो है वो ग्रुप चेंजेस को अलाउ करता है ताकि जो जितने भी
चेंजेस हैं या कोई भी जो चेंजेस है वो आपके डेटा में दिख सके। अब आप ये भी इंश्योर करना चाहेंगे कि कोई भी जो आपके डेटा को व्यू ना करे, तो क्योंकि आप अपना जो डेटा है आप शेयर कर सकते हैं, एक्सेस डेटा को शेयर करते हैं दूसरे यूजर्स के साथ, तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन सेट करनी पड़ती है यूजर्स पे, ओके, कि कौन उन्हें देख सकता है, कौन उन्हें अपडेट कर सकता है, राइट। ओके, हियर इज अ प्रैक्टिकल वर्क गिवन टू यू, जिससे आपने खुद से करना है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस। MS Access 2016 provides 2 different ways to create a database. Okay, तो 2 तरीके से आप database create कर सकते हैं। एक तो है आपका create a blank database and second one is create a database using template. Creating a blank database. 1. Open MS Access 2016. 2. Select the blank database. 3. Or go to File, New, Blank Database to create a new database. 4. The blank database opens that asks you to enter the name for the database in file name text box. 5. You can change the default location of the database. Select the folder icon next to the text box called file name. Click on create button. Your new database has now been created. 8. A table will appear on the screen. By default, its name is table 1. You can see menus which can be used to customize table 1. चलिए देखिए, अब आपको एक फर्स्ट मेथड से ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, MS Access 2016 को ओपन करेंगे, ओके। देन आप सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेटाबेस, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जाएंगे फाइल पे, फिर न्यू, देन ब्लैंक डेटाबेस, ओके। अब ब्लैंक डेटाबेस आपका ओपन हो गया। इसमें देखिए आपका, ये आपको कहेगा एंटर करने के लिए नेम, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स पे। आप यहाँ पे चाहें तो आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन डेटाबेस की चेंज कर सकते हैं। फोल्डर आइकन को आपने सिलेक्ट करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका ये डेटाबेस, न्यू डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब देखिए टेबल अपीयर हो गई स्क्रीन पे और बाय डिफ़ॉल्ट इस टेबल का नाम है टेबल 1, ओके। फैक्ट फाइल, यू कैन चेंज द डिफॉल्ट नेम डेटाबेस 1 टू ए नेम ऑफ योर चॉइस। अच्छा, आप जो ये डिफॉल्ट नेम है ना डेटाबेस 1, इसको आप अपने चॉइस के नेम में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसे कोई भी नेम दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, क्रिएट डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स। If you want to use predefined layout, templates are available in MS Access. You can choose any template as per your requirement. अच्छा, अगर आप predefined layout को चूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे templates आपके पास available है, okay? Number 1, from the welcome screen or from file menu, you can click on a selection of templates as shown below. 2, a processing bar opens in a window as shown in the figure below. 3, you will see a task pane on the screen. 4, give a name to the template in file name text box. You can change the location where you want to save the file by clicking on folder icon. 5, click create button. The following window appears which shows the table in form view. Okay, तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं, ओके। अब देखिए आपका एक प्रोसेसिंग बार ओपन हो गया है विंडो पे, राइट। अब आपको टास्क पे नज़र आएगा स्क्रीन पे, ओके। अब फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स पे आप टेम्पलेट को नेम देख सकते हैं, आप लोकेशन चाहें तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, ओके। फिर क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे, ओके ओके। अब देखिए नेक्स्ट, creating a new table and primary key. Now that the database have been created, a table is to be created. Select the tab create, select the option table from the given options. अब देखिए क्योंकि आपका जो database है वो आपका create हो चुका है, अब आपको क्या करना है, table को create करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, create को select करना है, फिर आपने select करना है table को, okay? Fact file, Access 2016 creates a table automatically when you create a blank database which can be customized according to the requirements. Access 2016 जो है टेबल को ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है जब आप ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, एंड फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, राइट। Access provides us 2 different views for a table. 1, design view, 2, data sheet view. So what is data sheet view?
In this view, records are shown as rows and fields are shown as columns. This view shows a grid. Datasheet view displays the data in the cells. Each row represents a record. If the table has, say, 5 records, there would be 5 rows of data. In datasheet view, if you want to find out a field's data type, you need to select that field. Then select the Fields tab from menu. You can see the data types of fields as well as their properties. अच्छा देखिए, डेटा शीट व्यू में रिकॉर्ड्स आपके शो होते हैं एज रो एंड आपके जो फील्ड्स होते हैं वो शो होते हैं एज कॉलम. इस व्यू में आपको ये शो करता है ग्रिड को. तो डेटा व्यू डिस्प्ले करता है डेटा को सेल्स में. हर रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है. अगर हमारा टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं तो मतलब 5 रोज ऑफ डेटा होंगे उसमें, राइट? ओके. और इस व्यू में अगर आप चाहते हैं फील्ड डेटा टाइप को फाइंड करना, तो आपको फील्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फील्ड्स टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा मेन्यू से. ओके. अब आप देखिए, आप डेटा टाइप ऑफ फील्ड्स देख सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को भी, राइट? नेक्स्ट, डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू डजंट डिस्प्ले एनी डेटा, therefore more space is available to display other settings. In this view, field listings are vertical. They are not displayed side by side. In design view, you can see the data type listed next to each field. The way design view works is when you click on a field in the top frame, the bottom frame displays the properties for that field. You can then change these properties as required. You will now use design view to do 2 things: create a new table, set field properties for the existing table. Okay. अब देखिए, आपका ये जो डिज़ाइन व्यू है, इसमें क्या है कि किसी भी डेटा को ये डिस्प्ले नहीं करता है, तो ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है बाकी सेटिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए. ओके. इस व्यू में फील्ड लिस्टिंग्स वर्टिकल होती हैं, मतलब कि वह साइड बाय साइड डिस्प्ले नहीं होती, इंस्टेड वर्टिकल होंगी. और इस डिज़ाइन व्यू में आप डेटा टाइप जो लिस्टेड होता है वो देख सकते हैं नेक्स्ट टू ईच फील्ड. ये जो डिज़ाइन व्यू जो वर्क करता है ना, जिस तरीके से है, ये है कि जब आप फील्ड पे क्लिक करते हैं तो जो बॉटम फ्रेम है वो उस फील्ड की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करता है. ओके. फिर आप इस प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड. ओके. अब देखिए, डिज़ाइन व्यू का हम यूज़ करेंगे 2 चीज़ों को करने के लिए. सबसे पहले एक न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए और फील्ड प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए, वो भी एग्जिस्टिंग टेबल के लिए, राइट? नेक्स्ट, प्राइमरी की. A primary key is the unique identifier for the table. In the field of primary key, every value is unique for every record. To create a primary key, follow the given steps. 1. Right-click on the ID field, a drop-down list opens. 2. Select primary key from the 3 list. 3. This makes the field a primary key field. You will see a little key icon to the left of ID which indicates primary key field. 4. The option auto number generates numbers automatically in every record that is created. Okay. Now what you have to do is primary key को create करना है. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ID field पे आप राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है, यहाँ से प्राइमरी की को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट? ओके. अब आपका इससे जो फील्ड है वो प्राइमरी की फील्ड हो जाएगा. आपको एक छोटा सा लिटिल की आइकन भी नज़र आ रहा है आईडी के लेफ्ट में, जो उसको इंडिकेट कर रहा है कि ये प्राइमरी की फील्ड है. ओके. आप देखिए, जो ये ऑप्शन है ऑटो नंबर, ये नंबर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा हर रिकॉर्ड में जब ये क्रिएट होगा, राइट? नेक्स्ट, डेटा टाइप्स. Every table in Access is made up of fields. The properties of the field can be changed according to the needs of the database. A field's data type controls the kind of data it can store. In this topic, you will know about the description of the data types and other fields properties available in Access. अच्छा, हर टेबल जो एक्सेस में होती है आपकी फील्ड से बनी होती है, तो जो प्रॉपर्टी है फील्ड की उनको हम चेंज कर सकते हैं डेटाबेस की नीड के अकॉर्डिंग. फील्ड डेटा टाइप जो है वो कंट्रोल करता है काइंड ऑफ डेटा जो इसे स्टोर कर सकता है. तो इस टॉपिक पे हम जानेंगे अब डेटा टाइप्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में एंड दूसरे फील्ड प्रॉपर्टीज जो आपके अवेलेबल है एक्सेस में. बट उससे पहले हम नोट देखते हैं. Each field can store data consisting of only a single data type. देखिए, हर फील्ड जो है वो डेटा को स्टोर करेगा consisting of only a single data type, right?
A field's data type determines which formats can be used with the field, the maximum size of a field value, how can the field be used in expressions. तो देखिए फील्ड डेटा टाइप क्या डिटरमिन करता है कि कौन सा फॉर्मेट आपका यूज होगा, हो सकता है फील्ड के साथ, मैक्सिमम साइज क्या है फील्ड वैल्यू का, एंड किस तरह से फील्ड को यूज किया जाता है एक्सप्रेशंस में. A field's data type can be predefined or you may select a data type depending on how you create the new field. If you use an existing field from another table, the data type is already set in the template or in the other table. If the data type of a field is text, that field will accept text data and numerical values. This data will be considered as text only. But a field whose data type is number can store only numerical data. So you have to know what properties are used with each data type. Enter data in a blank column. Access assigns a data type to the field based on the values that you enter, or you can assign the data type and format for the field. The data types are displayed by MS Access. You can define the fields as per your choice using these data types. Okay. अब आपका जो field data type है उसको प्री-डिफाइंड भी कर सकते हैं या फिर आप एक डेटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप किस तरह से न्यू फील्ड को क्रिएट करते हैं. ओके. अगर आप एग्जिस्टिंग फील्ड को यूज़ करते हैं किसी दूसरी टेबल से तो डेटा टाइप आपको ऑलरेडी सेट है आपका टेम्पलेट में या फिर दूसरे टेबल में, राइट. और अगर डेटा टाइप फील्ड का टेक्स्ट है तो वो फील्ड फिर टेक्स्ट डेटा और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा. और ये जो डेटा है वो आपका टेक्स्ट ही कंसिडर्ड किया जाएगा, राइट. बट एक फील्ड जिसका डेटा टाइप नंबर है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही स्टोर करेगा, है ना. सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं हर डेटा टाइप के साथ, राइट. आप डेटा को जैसे एंटर कर रहे हैं ब्लैंक कॉलम में तो एक्सेस जो है वो असाइन करता है डेटा टाइप को टू द फील्ड जो बेस्ड होते हैं आपकी वैल्यूज पे जो आपने एंटर की है या आपने जो असाइन किया है डेटा टाइप एंड फॉर्मेट उस फील्ड के लिए, राइट. तो जो डेटा टाइप्स आपके डिस्प्लेड होते हैं बाय MS Access, आप फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं एज पर योर चॉइस यूजिंग दीज डेटा टाइप्स. Now, selection of data type. A field's data type is a set of qualities or restrictions which applies to all the values contained in the field. For example, values that are stored in a text field can contain only letters, numbers, and limited special characters. Besides, it can contain a maximum of 255 characters. देखिए फील्ड डेटा टाइप आपका सेट ऑफ क्वालिटीज़ है या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके सभी वैल्यू पे अप्लाई होते हैं जो आपके फील्ड में होते हैं, राइट. जैसे कि वैल्यू जो आपके टेक्स्ट फील्ड में स्टोर्ड है उसमें सिर्फ लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे या लिमिटेड स्पेशल कैरेक्टर्स. इसके अलावा इसमें आपके मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट. द फॉलोइंग टेबल शोज ऑप्शन फॉर डेटा टाइप्स एंड एक्सप्लेन्स द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑप्शन. तो देखिए पहला आपका डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट. It is used to store text or a combination of text and numbers that does not require calculation such as addresses, phone numbers, etc. The field with this data type can have a maximum of 255 characters. तो ये देखिए शॉर्ट टेक्स्ट में आपका क्या होगा, इसको शॉर्ट टेक्स्ट को जो आपका शॉर्ट टेक्स्ट है उसके लिए यूज़ किया जाता है या कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट या नंबर्स का जिसको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है. और इसमें मैक्सिमम आपकी 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉन्ग टेक्स्ट. इट इज़ यूज टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट दैट इज अप टू 65,536 कैरेक्टर्स. It can be used for storing detailed information such as the synopsis of a book or a patient's medical history. अब आपको लेंथी टेक्स्ट को स्टोर करना है तो उसके लिए लॉन्ग टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप का यूज़ होता है आपका. एंड इसमें आपके 65,536 कैरेक्टर्स तक इसकी लेंथ हो सकती है. जैसे कि किसी पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री है, ओके, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होगी. नंबर. इट इज़ यूज फॉर न्यूमेरिक डेटा दैट कैन बी यूज्ड कैलकुलेशंस. Date time. It stores date and time values. You can display the date and times in various formats. अब आप डेट और टाइम को ना वेरियस फॉर्मेट्स में आप डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज करेंसी. इट स्टोर्स करेंसी वैल्यूज एंड देन डिस्प्लेज देम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. करेंसी वैल्यू को स्टोर करता है फिर डिफरेंट फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले करता है. ऑटो नंबर. इट स्टोर्स एन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली एज यू ऐड रिकॉर्ड्स. देखिए ये इंटीजर को स्टोर करता है तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है जैसे ही आप रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं, राइट. येस नो.
It can have only one of two possible values such as yes or no, true, false और on or off. Okay, इसमें आपकी सिर्फ एक ही possible values हो सकती है. Okay, दो possible value में से सिर्फ एक, या तो yes या no, true या false, या फिर on या off. All or only. It stores graphics or objects such as Microsoft Excel worksheet or Microsoft Word document. Okay, तो ये graphics को store करके रखता है या object को store करता है. Hyperlink. The fields with this data type can store links to websites or email addresses. इस डेटा टाइप में देखिए ये लिंक्स को स्टोर करता है टू वेबसाइट्स या फिर ईमेल एड्रेसेस. अटैचमेंट. This data type is used to attach images, spreadsheet files, documents, charts, and other types of supported files to the record in your database, much similar to the manner you attach files to the emails. अच्छा, अब इस डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है इमेजेस को अटैच करने के लिए. स्प्रेडशीट फाइल्स हैं आपके, डॉक्यूमेंट्स हैं, चार्ट्स हैं या दूसरी तरह के जो सपोर्टेड फाइल्स हैं, ओके, आपके डेटाबेस की रिकॉर्ड में. मच सिमिलर टू द मैनर, जैसे आप अटैच करते हैं ना ईमेल्स में अपनी फाइल्स को, बस सिमिलर वे में. कैलकुलेटेड. फील्ड्स विद दिस डेटा टाइप store results of a calculation. The calculation must refer to other fields in the same table. Okay. अच्छा देखिए, जो फील्ड होते हैं विद दिस डेटा टाइप, ये क्या करते हैं, कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं. लुकअप विजार्ड. दिस क्रिएट्स अ लुकअप फील्ड दैट डिस्प्लेज अ सेट ऑफ वैल्यूज. It helps you to create a field whose values are chosen from the value in another table, query or list of values. ये लुकअप फील्ड क्रिएट करता है जो कि सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है. इससे आप एक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वैल्यूज़ आप चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू इन जो आपके दूसरे टेबल, क्वेरी या लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में, राइट. नाउ फील्ड इन अ टेबल. A field shows a set of information about a particular person or thing. When we define related fields in a database, a record is made. In a database where an employee information is stored, a record contains information linked to a single employee. A field जो है वो set of information को show करता है किसी particular person या thing के बारे में. Okay? तो जब हम related fields को define करते हैं database में, एक record आपका बनता है. डेटाबेस में जहाँ पे आपका एक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो रिकॉर्ड में आपका इन्फॉर्मेशन होता है जो कि लिंक्ड होता है एक सिंगल एम्प्लॉय के साथ. ओके. रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड. कैन बी अप टू 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग. Can include any combination of letters, numbers, spaces, and special characters except a period, that is dot, an exclamation point, an accent grave, and brackets. We cannot start with leading spaces. Can't contain control characters. Can't contain a double quotation mark in table, view, or stored procedure names in a Microsoft Access project. ओके. अब रूल्स क्या है फील्ड को नेम करने के. सबसे पहले तो 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है. लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नंबर, स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स. सिर्फ इनके अलावा आप पीरियड और एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सेंट ग्रेव और ब्रैकेट्स यूज नहीं होने चाहिए. लीडिंग स्पेस के साथ आप स्टार्ट नहीं कर सकते और कंट्रोल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते. ओके. और डबल कोटेशन मार्क नहीं हो सकता टेबल में, व्यू में या स्टोर प्रोसीजर में, नेम्स में, राइट. Field size property. Now that a field and its data type have been defined, you can set its additional properties. The field's data type determines which other properties you can set. For example, you can control the size of a text field by setting its field size property. For number and currency fields, the field size property is especially important because it determines the range of field values. For example, a 1-bit number field can store only integers ranging from 0 to 255. The field size property also determines how much disk space each number field value requires. Depending on the field size, the number can use exactly 1, 2, 4, 8, 12 or 16 bytes. Okay. अब फील्ड और उसका डेटा टाइप डिफाइन हो गया है, तो आप एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को आप सेट कर सकते हैं. फील्ड का जो डेटा टाइप है वो डिटरमिन करता है कि कौन सी दूसरी प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं. जैसे कि आप जो टेक्स्ट फील्ड का साइज़ है उसे कंट्रोल कर सकते हैं उसका फील्ड साइज प्रॉपर्टी को सेट करके. नंबर और करेंसी फील्ड के लिए जो फील्ड साइज प्रॉपर्टी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
फील्ड वैल्यूज की रेंज को डिफाइन करता है, डिटर्मिन करता है। जैसे 1 बिट नंबर फील्ड जो है वो सिर्फ इंटीजर्स उन्हीं को स्टोर करेगा जिनकी रेंज होगी 0 to 255। ओके, तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी है वो ये भी डिटर्मिन करता है कि कितना डिस्क स्पेस नंबर फील्ड वैल्यू को रिक्वायर्ड होगी। ओके, और डिपेंडिंग ऑन द फील्ड साइज नंबर कितना यूज कर सकते हैं, देखिए 1 2 4 8 12 और 16 बाइट्स, राइट। सम फील्ड प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। तो चलिए देखते हैं फील्ड प्रॉपर्टी कुछ और क्या है। सबसे पहले आपका फील्ड साइज। दिस प्रॉपर्टी कैन बी सेट फॉर फील्ड्स विथ टेक्स्ट और नंबर डेटा टाइप। It sets a maximum size for data stored in a field to accommodate text, numbers और auto number data type. ओके, ये प्रॉपर्टी जो है आपकी फील्ड्स के लिए सेट की जाती है जिसमें आपके नंबर या नंबर डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, और ये क्या सेट करता है, मैक्सिमम साइज सेट करता है फॉर जो आपके डेटा स्टोर होता है फील्ड में टू अकोमोडेट टेक्स्ट 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स एंड नंबर्स है या ऑटो नंबर डेटा टाइप, राइट। फॉर्मेट, इट कंट्रोल्स अ मैनर इन विच डेटा गेट्स डिस्प्लेड। ये कंट्रोल करता है कि किस वे में आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले होता है। इनपुट मार्क, इट मेक्स डेटा एंट्री ईजियर एंड कंट्रोल्स द वैल्यू विच अ यूजर मे एंटर इनटू इट। ये डेटा एंट्री को ईजियर बनाता है एंड वैल्यूज को कंट्रोल करता है जो एक यूजर एंटर करता है। कैप्शन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गिव एन ऑल्टरनेट मोर डिस्क्रिप्टिव नेम टू फील्ड। ओके, और इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है ऑल्टरनेट या ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम हम किसी फील्ड को दे रहे हैं तो। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ वैल्यू दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली विद व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है एक वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए जो ऑटोमेटिकली आपके डिस्प्ले होती है जब न्यू रिकॉर्ड क्रिएट होता है, राइट। वैलिडेशन रूल, it is used to put conditions on the data that can be entered in a field। और इसका यूज़ किया जाता है कंडीशंस को रखने के लिए, पुट करने के लिए डेटा में, ओके, जिसे फील्ड में एंटर किया जा सकता है। वैलिडेशन टेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज व्हेन द वैलिडेशन रूल गेट्स वायलेटेड। ओके, देखिए जब कभी भी वायलेशन रूल वायलेट होता है तो फिर इसको यूज़ किया जाता है एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। रिक्वायर्ड, it forces you to enter a value if the required property is set for yes। ओके, ये आपको फोर्स करता है कि आप वैल्यू को एंटर करें अगर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो yes सेट किया गया है। ओके, डेसिमल प्लेसेस, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर न्यूमेरिक डेटा, allows zero length, it accepts a blank entry if the required property is set for yes। ओके, ये blank entry को एक्सेप्ट करता है अगर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सेट की गई है for yes, right। Select a data type for the new field। 1. Click on the drop-down arrow to set the data type of a particular field. 2. A drop-down list opens. 3. Click on the required data type from the list. 4. A field properties box opens with the general tab and is selected by default. 5. Set the required properties for the field whose data type you have set. 6. In this case, we are telling access to allow only short text in this field. If a user tries to enter a different data type, they will receive an error. Okay, see देखिए, अब आपको डेटा टाइप को सिलेक्ट करना न्यू फील्ड के लिए। सबसे पहले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है डेटा टाइप को सेट करने के लिए। ओके, देन आपका लिस्ट ओपन होता है, रिक्वायर्ड डेटा पे आप क्लिक कर देंगे, फिर आपका फील्ड प्रॉपर्टीज बॉक्स ओपन होता है और अब आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। ओके, फिर इस केस में हम एक्सेस को बता रहे हैं हम कि सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट को ही अलाउ करें इस फील्ड में। ओके, अगर यूज़र जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप को एंटर करता है तो फिर क्या होगा, एक एरर आ जाएगा। ओके ओके, हियर इज़ अ प्रोजेक्ट वर्क गिवन टू यू जिसे आप खुद से करेंगे। सेविंग अ टेबल, saving the table is important. If you don't save it, its data may be lost due to abruptly switching off the computer. 1. Right click on table 1 and select save option from the drop down list or press Ctrl plus S from the keyboard. 2. A save as dialog box opens. 3. Enter table name at the prompt. 4. Click save button. Thus, the design view can be used to edit any table. It doesn't matter whether the table was created in design view or data sheet view. Any table can be edited in designed view. Okay. देखिए,
अब आपको टेबल को सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल 1 पे राइट क्लिक करेंगे और फिर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर चाहे तो आप Ctrl+S को भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। अभी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, टेबल नेम आप एंटर करेंगे एंड देन सेव बटन, फिर आपकी ये फाइल सेव हो जाएंगी टेबल। ओके, फैक्ट फाइल, यू कैन कन्वर्ट द फाइल इनटू PDF बाय सिंपली सेविंग इट एज PDF। Simply click on file, save and publish, save object as PDF or XPS, save as। अच्छा देखिए, आप अपनी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं by simply saving it as PDF। आपने क्या करना है, क्लिक कीजिए फाइल पे, सेव एंड पब्लिश, फिर सेव ऑब्जेक्ट एज PDF और XPS एंड देन सेव एज, राइट। अच्छा देखिए, डिज़ाइन व्यू को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेबल को एडिट करने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेबल जो है क्रिएट हुई थी डेटा डिज़ाइन व्यू में या डेटा शीट व्यू में, किसी भी टेबल को एडिट किया जा सकता है डिज़ाइन व्यू में, राइट। नाउ एडिटिंग डेटा इन अ टेबल, एडिंग डेटा टू अ टेबल। There are many ways of adding data to an Access 2016 table. You can use a form, import from an external file, use SQL or can enter data directly into the table. देखिए बहुत सारे तरीके हैं डेटा को ऐड करने के लिए। ओके, आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल से ही, SQL यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेटा को डायरेक्टली आप एंटर कर दीजिए टेबल पे, राइट। Add records directly into datasheet view is a common way to enter data into a database. Just open up the table and start typing. The ID field gets numbered automatically. The down arrow key from the keyboard will insert the record and move the cursor to the same field on the next record. देखिए, आपने ओपन अप, जस्ट टेबल को ओपन अप करना है, टाइप करना स्टार्ट कर देना है। ओके, एंड देन ID फील्ड जो है में आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। डाउन एरो की जो है फ्रॉम द कीबोर्ड ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा एंड कर्सर को मूव करेगा टू द सेम फील्ड ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड। एडिटिंग डेटा इन अ टेबल, टू एडिट और change the data in the table. 1. Scroll down the records to locate the record which you want to edit. 2. To edit the data, double click on the cell containing the data. 3. Add new data, click outside to save changes. अब आपको देखिए टेबल के अंदर कुछ एडिटिंग या चेंज करना है डेटा को, तो सबसे पहले आप स्क्रॉल करेंगे रिकॉर्ड को लोकेट करने के लिए जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। फिर डेटा को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे सेल में जिसमें आपका डेटा होगा, फिर न्यू डेटा को ऐड करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे और इसके बाद वो चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एडिंग अ न्यू फील्ड टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू। 2. Click the header with the text, click to add. If you already have several fields, you may have to scroll all the way to the right to see this. 3. Write down the name of the field and a new field will be added in a table. अब देखिए, आपको न्यू फील्ड को ऐड करना है, वो भी एग्जिस्टिंग टेबल में। उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे। ओके, फिर आपने करना है क्लिक द हेडर विद द टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड। अगर आपके पास बहुत सारे फील्ड्स हैं तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर आपने फील्ड का नेम लिखना है और न्यू फील्ड आपका ऐड हो जाएगा टेबल में, राइट। फैक्ट फाइल, टू डिलीट द फील्ड फ्रॉम द टेबल, राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम एंड सेलेक्ट डिलीट फील्ड ऑप्शन। आप टेबल में से किसी फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप फील्ड नेम पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे डिलीट फील्ड ऑप्शन को, राइट। नेक्स्ट, टू मूव अ फील्ड। 1. Locate the field you want to move, then hover your mouse over the bottom border of the field header. 2. The cursor will become a 4-sided arrow. 3. Click and drag the field to its new location. 4. Release your cursor. 5. You will see that the field has appeared in a new location. अब आपको फील्ड को मूव करना है न्यू लोकेशन पे। सबसे पहले आपने उस फील्ड को लोकेट करना है जिसे आप मूव करना चाहते हैं। अब आप होवर करेंगे अपने माउस को फील्ड हेडर के बॉटम बॉर्डर में। अब देखिए आपका जो कर्सर है ये 4-साइडेड एरो हो गया है ना। फिर आप इसको क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे इसको न्यू लोकेशन पे। ओके, नाउ कर्सर को रिलीज करेंगे। अब देखिए आपका जो फील्ड है ये न्यू लोकेशन में अपीयर हो गया, राइट। हाइड अनहाइड अ फील्ड। 1. Right click on the field name which you want to hide. 2. From the drop down list select hide fields option. 3. If you want to unhide the field, right click on a field name. Now select unhide fields.
4. An unhide field dialog box opens. 5. Click on the checkbox of the field which you want to hide. Okay. अब देखिए फील्ड नेम पे आपने राइट क्लिक करना है जिसे आप हाइड करना चाहते हैं. उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सेलेक्ट करेंगे हाइड फील्ड ऑप्शन को. अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फील्ड नेम पे राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करेंगे अनहाइड फील्ड. फिर आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा. फिर चेक बॉक्स पे आपने क्लिक करना है जिसको आप अनहाइड करना चाहते हैं. ओके. When you sort records, you are putting them into a logical order with a similar data grouped together. Sorted data is simpler to read and understand. MS Access sorts records by ID numbers by default. But records can be sorted on the basis of other criteria as well. You can sort both text and numbers in two ways: ascending order, descending order. Ascending means sort will arrange numbers from the smallest to largest and text from A to Z. Descending means the arrangement is from the largest to smallest for numbers and Z to A for text. The default ID number sort that appears in your tables is an ascending sort. You can rearrange a worksheet by sorting your data. Sorting organizes all the data in the worksheet by one column. Related information across each row is kept together when the sort is applied. देखिए जब आप रिकॉर्ड को सॉर्ट करते हैं ना तो आप उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में रख रहे हैं, राइट. मतलब जो सिमिलर डेटा ग्रुप्ड होता है साथ में. तो सॉर्टिंग से क्या होता है, जो सॉर्टेड डेटा होता है एक्चुअली उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाता है. तो जो MS एक्सेस है वो रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है बाय ID नंबर्स. ओके, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट. बट रिकॉर्ड को हम दूसरे क्राइटेरिया के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग है. असेंडिंग आपको पता है इसमें अगर नंबर्स अरेंज होंगे तो होंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड टेक्स्ट की बात करें तो A to Z. और डिसेंडिंग में आपका अरेंजमेंट होगा लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर में और टेक्स्ट का होगा Z to A में. ओके. तो जो डिफ़ॉल्ट ID नंबर जो आपके टेबल में अपीयर होती है वो आपकी एक असेंडिंग सॉर्ट है और आप वर्कशीट को रीअरेंज कर सकते हैं अपने डेटा को सॉर्ट करके. ओके. तो जब आप सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग से क्या होता है कि डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है वर्कशीट में बाय वन कॉलम. ओके. सॉर्टिंग डेटा विद इन अ टेबल. मेथड 1. सो पहले हम मेथड 1 से शुरुआत करेंगे. 1. Select one cell in any column which is to be sorted. 2. Select the home tab, then in sort and filter group, click the A to Z ascending command to sort in ascending order or the Z to A descending command to sort in descending order. The worksheet will be sorted by the selected column. Okay. इसमें देखो आपको क्या करना है, एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए कॉलम का जिसको सॉर्ट करना है. फिर आप होम टैब को सिलेक्ट करेंगे. फिर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आप क्लिक करेंगे A to Z असेंडिंग कमांड. तो इससे आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा. और Z to A डिसेंडिंग कमांड को करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट आपका सॉर्ट हो जाएगा. ओके. Method 2. Right click on a field name. A pop-up menu will appear on the screen. Select the required option to sort the data. After you save the sort, the records will stay sorted this way until you perform another sort or remove the current one. To remove a sort, click the remove sort command in home tab under sort and filter group. Okay. अब सेकेंड मेथड में देखिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे फील्ड नेम पे, पॉपअप मेन्यू आपका अपीयर हो गया स्क्रीन पे. अब जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है अब डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप कर सकते हो. ओके. ओके. आपने जैसे सॉर्ट को सेव कर लिया तो आपका जो रिकॉर्ड है वो सॉर्टेड रहेगा इस तरह से जब तक कि आप दूसरा कोई सॉर्ट नहीं परफॉर्म करते या फिर करंट वन को आप रिमूव नहीं करते. अगर आप ये जो सॉर्ट है से रिमूव करना चाहते हैं, जो जस्ट आपने आपके पास ये जो होम टैब है अंडर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, यहाँ पे आपके पास है रिमूव सॉर्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट, फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स. A filter allows us to see only that data which meets some criteria. When you create a filter, you set criteria for the data to be displayed and temporarily hides the ones that you do not want. Filters are useful because they allow you to focus on specific records. If you have a database that includes customer and order information, you can create a filter to display only customers living within a certain city or only orders containing a certain product. Viewing this data with a filter would be far more convenient than searching for it in a large table.
अब फिल्टर जो है आपको अलाउ करता है कि आप सिर्फ वही डेटा देख सकते हैं जो कुछ क्राइटेरिया को मीट करता है। जैसे आप फिल्टर क्रिएट करते हैं तो आप कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं कि डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, एंड टेम्परेरली आप हाइड कर देते हैं जिसे आप नहीं चाहते। ओके, तो फिल्टर्स आपके लिए यूजफुल है क्योंकि ये आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में फोकस करने में हेल्प करते हैं। ओके, अलाउ करते हैं। तो अगर आपके पास डेटा बेस है जिसमें आपका इंक्लूडेड है कस्टमर एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, तो आप फिल्टर को क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ कस्टमर्स को डिस्प्ले करने के लिए, लिविंग विद इन अ सर्टेन सिटी या वही ऑर्डर जिसमें आपका एक सर्टेन प्रोडक्ट हो, राइट। टू फिल्टर नंबर्स बाय अ सर्च टर्म, 1. Click the drop down arrow next to the field you want to filter by. Suppose you want to filter the records in your menu items table by house, click the arrow in the house field. 2. A drop down list pop-ups before you. Select the method of filtering from that list. 3. Click OK button. अच्छा देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने ड्रॉप डाउन एरो फील्ड के जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है जिसको आप फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे कि आप सपोज आप फिल्टर करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स अपने मेन्यू आइटम्स में टेबल बाय हाउस, तो आपने क्लिक करना है एरो को हाउस फील्ड में, फिर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट पॉपअप हो गया। अब आप मेथड ऑफ फिल्टरिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप क्लिक करेंगे ओके बटन पे। एडवांस फिल्टर, you can advance your filter by setting the more criteria like equal, begins with, etc. as shown in the picture given below. Suppose you want to choose a student whose names begin with S. 1. Click on drop down arrow next to student name. 2. Select text filters from the drop down list. 3. From further list, select the begins with filter option. 4. In the custom filter dialog box, define a filter condition. Look at the picture given below. 5. You can see the records of all those students whose names start with the letter S. देखिए, आप अपने फिल्टर को एडवांस कर सकते हैं। ओके, आप ज़्यादा क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं। ओके, लाइक इक्वल्स, बिगिन विद एट्सेट्रा। तो आप देखिए, जैसे कि आप करना चाहते हैं उन स्टूडेंट को चूज करना जिसका नेम शुरू होता है एस से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो, ये स्टूडेंट नेम की जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट फिल्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो आपके पास फर्दर लिस्ट है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बिगिन्स विद फिल्टर ऑप्शन। फिर कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स में आप फिल्टर कंडीशन को डिफाइन करेंगे। ओके, देन व्हाट विल यू डू, अब देखिए रिकॉर्ड्स आपको जितने भी स्टूडेंट जिसका नाम एस एस शुरू हो रहा था ना, ये आपके सारे आ गए। ओके, now close a database. Method word, click on the table file, select class from the menu that appears. अच्छा देखिए, आपको ना टैब फाइल पे क्लिक करना है एंड फिर आप सेलेक्ट करेंगे क्लास। ओके, method 2, click on the close button on the top right corner of the window. If you have any unsaved objects, a dialog box will appear asking if you want to save it. You can click on yes to save the object, click on no to close the object without saving it, click on cancel to keep the database open. अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो क्लोज बटन है आपका टॉप राइट कॉर्नर में आता है, इस पर क्लोज कर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका अनसेव्ड ऑब्जेक्ट है तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं। अगर आपको करना है सेव तो येस पे क्लिक करेंगे, सेव नहीं करना है तो नो पे, और अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो डेटाबेस आपका ओपन ही रहेगा। राइट, समरी पॉइंट्स। A DBMS is a database management system. It is used to create, update, retrieve, and manage data. In a hierarchical database, records contain information about groups of parent-child relationships. A network database is an interconnected network of records. Data in relational databases is stored in different tables. Object-oriented databases add the database functionality to object programming languages. There are many ways in which data can be managed in a relational database management system, that is RDBMS. RDBMS gives the flexibility to allow multiple users to read or update the data. Every table in Access is made up of fields. A field's data type is a set of qualities or restrictions which applies to all the values contained in the field. Use the field size property to change the size of the text field. Datasheet view is used to work on the table created previously. In design view, data type is listed next to each field. Records can be sorted with ease in a database.
Sort the records means putting them into a logical order. Filters allow to view limited data as per user requirement. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.